एक नई वैकेंसी आ चुकी है। देखिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन के तरफ से, और पोस्ट का नाम है डिप्टी मैनेजर। देखिए पोस्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, डिप्टी मैनेजर। क्वालिफिकेशंस बताऊंगा आपको। देखिए डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इरेक्शंस, क्वालिफिकेशन बी बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक विथ एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए आपकी बीटेक में। सेकंड में नेम ऑफ पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन 50 पोस्ट, क्वालिफिकेशन बी बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन विथ एट लिस्ट 60% मार्क्स। देन डेप्यूटी मैनेजर सी एंड आई इरेक्शन 10 पोस्ट, क्वालिफिकेशन बी बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स एट लीस्ट 60% मार्क। नेम ऑफ द पोस्ट डिप्टी मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शंस में 30 पोस्ट वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन बी बीटेक इन सिविल कंस्ट्रक्शंस विथ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए ये देख लेंगे। तो मिनिमम 10 years of the post qualifications executive experience including training period if any in a respective areas of power sector, out of which minimum 5 years executive experience in erections and commissioning of systems related to mechanical, electrical and C&I civilly. Experience requirement for all post minimum 10 years of post qualification experience including training period if any in the executive cadre in a government public sector undertaking on private company of repute, out of which minimum 2 years experience in the post of sale 60,000 to 1,80,000 approved IDA पे स्केल E3 ग्रेड और एबव NTPC इफेक्टिव फ्रॉम। देखिए ये पे स्केल है और एज लिमिटेड 40 ईयर्स तक है। पे स्केल फिर से बताता हूँ, 70,000 से 2 लाख तक आपकी सैलरी है। ठीक है, तो अच्छा खासा सैलरी है यार। डिप्टी मैनेजर एनटीपीसी में जिसका बीटेक है ये अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेक्शंस देखिए 10 ऑन रिजर्व में 10 है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1 है। ये टेबल है सारे वैकेंसी कितने कितने वैकेंसी है कौन सी कैटेगरी में। उसके बाद देखेंगे हेल्थ क्या है। द कैंडिडेट शुड हैव sound health before joining. Candidate will have to undergo medical examinations at the NTPC hospitals and the decisions will be final and binding. No relaxation in the health standards is allowed. Details medical norms general conditions only Indian nationals are eligible to apply. All qualifications should be from universities, institutions recognized and approved in India. In terms of educational qualifications, only pass mark are required to SC, ST, PWB candidate in order to apply. All competitions of age, experience requirement, qualifications shall be done. ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेंशन एडवर्टाइजमेंट। देन देखें कैंडिडेट क्लेमिंग बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी shall necessarily have a valid EWS, OBC, SC, ST डिजेबल्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये देख लेना आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो सर्टिफिकेट मांगे हैं ये है। और रिलैक्सेशन से आपको मिलेगा, ओबीसी है तो आपको 3 साल, SC, ST को 5 साल। ठीक है, ये सब रिलैक्सेशन से। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट, curtail, enlarge the number of vacancy if need so arise without any further notice and without assigning any reason thereof. In order to restrict the number of candidates for interview if so required, the management reserve the right to conduct online screening, shortlisting, selection test or to raise the minimum eligibility standards criteria as per requirement. Posting shall be at any of the stations project JBS subsidiaries of NTPC. All posts are transferable of the sole of directions of the management. Then while applying for the post, the applicant should ensure that she fulfill the eligibility and other norms mentioned above as on the specified dates and that of the particular furnished and correct in the all respect. तो ये कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब करोगे थोड़ा ध्यान से करोगे। द मेरी फैक्ट ऑफ दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड अपेरेंटली फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया आप अच्छे से भरना। ठीक है, देन हाउ टू अप्लाई, तो आपको जाना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी लॉग इन careers.ntpc.in ये साइट में जाना है आपको, या www.ntpc.co इन साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। वैलिड, आप याद रखना है वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये देना। पेमेंट ऑफ इन ऑफलाइन मोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज कलेक्शन एप्लीकेशन फी स्पेशली ओपन अकाउंट। ठीक है,
देन जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ये ध्यान रखना, जो ऑफलाइन पेमेंट करोगे, ठीक है, पेमेंट इन ऑनलाइन मोड, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन मोड है, आप पेमेंट कर पाओगे, ये ध्यान रखना। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वहाँ नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आप अप्लाई करते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो लास्ट डेट है यार 23/2/2024, सॉरी 23/2/24 से स्टार्ट है, और लास्ट डे 8 मार्च 2024। तो 23 फरवरी से स्टार्ट है और 8 मार्च से वो लास्ट डेट है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो लोग अप्लाई कर दीजिए। कैसा लगा भाई, आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।